So good morning students. In today lecture we will see the various parts of a lathe machine and specifications of the lathe machine. And if time permits, we will see the various operations, introduction to various operations which are performed on lathe machine. So in the last lecture we were discussing about the lathe machine, the primary and secondary motions on the lathe machine and machining parameters. Primary motion on the lathe machine is the rotation of the workpiece, whereas movement of the tool is considered as secondary motion. Okay. Primary motion is the cutting motion, which is responsible for cutting, and secondary motion provides uh, uncut portion of the workpiece for further machining. Three important parameters considered in any machining operations are cutting speed, feed, and depth of cut. These three changes significantly changes the output parameters like surface finish, power requirements, and material removal rate also. So this we have discussed in the last lecture. We have seen the classification of the lathe machines, bench lathe, speed lathe, engine lathe, tool room lathe, automatic lathe, and special purpose lathe. And we have seen the various types of lathe machines in previous lectures also. And now we start, though we have started the description of various parts of lathe machine also in the last lecture. But if you have any doubt, then you can unmute yourself and ask the question. यदि यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया था पिछले वाले लेक्चर का तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Because this is very important, we have to know the various parts of the lathe machine. We must be identify the various parts of the lathe machine. In this figure it is very clear, but in the next figure which I am going to show you, you may identify the various parts of the lathe machine, central lathe basically. So this is head stong, which is used for mounting a rotation, providing rotation to the workpiece. This is the tail stocks, which slides over the slide bit, and it is used for supporting the workpiece from the other end. These two are the legs over which bed is mounted, bed is provided, and on top of the bed, bed bays are there. You can see two bed bays or slide bays over there on which this carriage and tail stock slides. Carriage is the device on lathe machine which is used for mounting the cutting tool, and it provides the motion to the cutting tool as well. You can see here the lead screw and the feed rod. Lead screw and feed rod are used for providing automatic motion to the carriage and hence to the workpiece. So these are important parts of the lathe machine. Okay. Now we have to consider the specification of the lathe machine. So before going into the details of the specification, which you can see in this slide, we have to consider the assembly of carriage, which is very important for understanding the specification of a central lathe. In this figure, the front view of the carriage is shown. This portion is known as apron, as it is written here, and its top portion of the carriage is known as saddle. On top of the portion of the saddle, you can see three important parts of the carriage, that is cross slide. This is known as cross slide as it is written here. This is compound rest. Basically, it is square and circular in shape, and some engravations are provided over it to rotate it by certain degree. तो इसमें engravations वहाँ पे होते हैं, angles में वहाँ पे दिए जाते हैं. Over top of it, you can see the compound slide. This is also part of the compound rest. Three important parts are there over top of the saddle, that is cross slide, compound rest. This compound slide can be considered as part of the compound rest only, and tool post. It is the tool post on which the cutting tool is held. ठीक है ना. तो जो कैरेज होता है, कैरेज के टॉप के पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं. सैडल में भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे हैं, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट and the tool post. These three are the important parts of the saddle of the carriage. Cross slide is used for moving the cutting tool perpendicular to the axis of the workpiece or in cross direction to the axis of the workpiece. That's why it is known as cross slide. Compound rest and compound slide are used for moving this cutting tool at an angle to the workpiece. Okay. So again, consider this figure.
Workpiece is mounted on the headstock using suitable work holding device like faceplate or chuck, and it is given rotary motion. Tool is mounted in this tool post, and it has to be provided motion with respect to the workpiece. So the tool has motion in one horizontal plane only. We cannot move it in a vertical up and downward direction. It is fixed in its position as far as horizontal plane is considered. Okay, but it can be moved in that horizontal plane along the axis of the workpiece, or perpendicular to axis of the workpiece, or at an angle to the axis of the workpiece. So we can move the cutting tool in three directions in the same horizontal plane. It can be moved parallel to axis of workpiece, वर्कपीस के पैरेलल हम इसको मूव कर सकते हैं. It can be moved at 90 degree to the axis of the workpiece, and it can be moved at an angle other than 90 degree to the axis of the workpiece. So for moving these the cutting tool in these three directions, three things are provided on the carriage. If we want to move the cutting tool along the axis of the workpiece, then we have to move this whole carriage unit, which is mounted and over the slide ways. यहाँ पे आपको स्लाइड वेज दिख रही हैं. स्लाइड वेज के ऊपर एक कैरेज रखा हुआ है, और स्लाइड वेज की मदद से हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं. ओके, स्लाइड वेज आर ऑल्सो नोन एज गाइड वेज. क्यों कहलाता है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स प्रॉपर गाइडिंग मोशन टू द कटिंग टूल विद रिस्पेक्ट टू द वर्कपीस. तो यदि हमें टूल को वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल मूव करना हो, तो उस केस में हम इस पूरे कैरेज का इस्तेमाल करेंगे. उसके लिए हैंड व्हील दिया है, उसके थ्रू हम मैनुअली इसको मूव कर सकते हैं. अदरवाइज फीड रॉड का इस्तेमाल करके हम इसको ऑटोमेटिकली मूव कर सकते हैं. ठीक है ना? सो कीप इन माइंड दैट whenever we have to move the workpiece along the axis, whenever we have to move the cutting tool along the axis of the workpiece, then we have to move this entire carriage unit. For this hand wheel has to be used. So by using this hand wheel, cutting tool can be moved from right to left or left to right. ठीक है ना? दोनों यहाँ पे पॉसिबल होता है. अब दूसरा आता है कि हाउ वी कैन मूव द कटिंग टूल परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द वर्कपीस. तो जैसा मैंने आपको बोला है, और इस फिगर में भी आपको 3 डायमेंशनल फिगर में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्लाइड दी गई है जिसका नाम लिखा है क्रॉस स्लाइड. ये प्रोवाइड की जाती है इस कैरिज के टॉप पे, जिसका नाम होता है सैडल. तो सैडल के ऊपर सबसे पहले आती है क्रॉस स्लाइड. यहाँ पे एक छोटा सा हैंड व्हील आपको दिख रहा होगा. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी क्रॉस स्लाइड और उसके ऊपर माउंटेड जो कंपाउंड रेस्ट है, टूल पोस्ट है, उसके थ्रू हम वर्क पीस को क्रॉस में मूव कर सकते हैं. ठीक है ना? तो यदि हमें वर्क पीस को कटिंग टूल को वर्क पीस के एक्सिस के 90 डिग्री पर मूव करना है, तो उस केस में हम क्रॉस स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है? सो टू थिंग्स आर क्लियर. If we have to move the cutting tool along the axis of the workpiece, then we will move this entire carriage unit. Okay. And on the other hand, if we have to move this cutting tool is mounted on the tool post, and if we have to move it at 90 degree to the axis of the workpiece, in that case we have to use the cross slide. Cross slide का मूव करके इसकी पूरी की पूरी इस यूनिट को, जिसके ऊपर कंपाउंड रेस्ट है और टूल पोस्ट है, उसको हम वर्कपीस के एक्सिस के 90 डिग्री पे मूव कर सकते हैं. ओके. तीसरा आता है कि हम कटिंग टूल को किसी एंगल पे जो कि 90 डिग्री के अलावा है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक दैट, उसके हिसाब से हम इसको कैसे मूव करें. तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कंपाउंड रेस्ट लगा होता है. ठीक है? तो यहाँ पे एक गोल सर्कुलर डिवाइस होती है जिसके ऊपर एनग्रेवेशंस होते हैं कि हम कितने एंगल पे, कितने डिग्री पे हम टूल को मूव कराना चाहते हैं. सपोज वी वांट टू मूव द टूल एट 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस. मतलब यदि हम यहाँ से एक लाइन इमेजिन करें जो कि इस सेंटर लेथ की इमेजिनरी सेंटर लाइन भी है और ये वर्कपीस का एक्सिस भी है, तो हम इसको 30 डिग्री में ऐसे मूव कराना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, कंपाउंड रेस्ट को रोटेट करना, टर्न करना. कितने डिग्री से? 30 डिग्री से. उस केस में क्या होगा कि, और इसको टर्न करने के बाद इसको लॉक कर देना है. ठीक है ना? कंपाउंड रेस्ट इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री. जितना हम उसको एंगल को कटिंग टूल को वर्कपीस के एक्सिस के हिसाब से मूव कराना चाहते हैं, उतने एंगल पर हम इस कंपाउंड रेस्ट को मूव करेंगे और उसको लॉक कर देंगे.
लॉक करने के बाद इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी स्लाइड होती है जो कि कंपाउंड स्लाइड कहलाती है, और उस स्लाइड के ऊपर टॉप में क्या होता है, टूल पोस्ट माउंट होता है। तो जब हम इस टूल को या टूल पोस्ट को 30 डिग्री के एंगल पर मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया हमने इस कंपाउंड रेस्ट जो कि एक सर्कुलर एनग्रेविशंस वाली डिवाइस है उसको हम 30 डिग्री से टर्न कर दिया। अब 30 डिग्री से टर्न करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इस कंपाउंड रेस्ट को फिक्स करना है और उसके ऊपर दी गई जो कंपाउंड स्लाइड है उसका इस्तेमाल करना है। उसके थ्रू आपको यहाँ पे एक हैंडल दिख रहा है, लीवर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस लीवर के थ्रू हम इसको मूव करते हैं तो आपका जो टूल पोस्ट और उसके ऊपर लगा हुआ टूल वो लाइन में मूव होने लगता है, ठीक है ना। तो वो चूंकि ऑलरेडी हम इसको 30 डिग्री से मूव करा चुके हैं तो जो टूल मूव होगा अब वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस वर्कपीस के एक्सेस से 30 डिग्री पे मूव होने लगेगा। So in this way we can give movement to the cutting tool in 3 directions, but cutting tool will never move in vertically up and down. It will remain in its place in the horizontal plane. मतलब एक horizontal plane आपने जब इसको टाइट कर दिया तो उसकी जो स्थिति आ गई वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप उसको या तो वर्कपीस के एक्सिस के पैरेलल मूव कर सकते हो, वर्कपीस के एक्सिस से 90 डिग्री पर मूव कर सकते हो, या वर्कपीस के एक्सिस से किसी एंगल पर उसको मूव किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यदि आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज यदि समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, आगे चलें। यस सर। ओके ठीक है, तो अब स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है अब इसको अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना। और ये फिगर मैंने क्यों बताया, क्यों समझाया, इसकी अपन को अब आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट are the parameters which describe that objects in a certain way, in some way. Suppose we want to purchase a pen, writing pen, that is blue pen or white, red pen or black pen. Then we go to the shop and we ask for a pen. तो उस केस में जब आप पेन के लिए पूछते हो तो जो शॉप ओनर रहता है अपन को उसमें आपको कुछ बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, हम बोलते हैं कि आई वांट अ रेड पेन, ठीक है। सो रेड जो इंक है दैट बिकम द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, जो उस पेन को स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है ना। देन यू कैन आस्क फॉर जेल पेन, यू कैन आस्क फॉर बॉल पॉइंट पेन, ठीक है ना, यू कैन आस्क फॉर इंक वो फाउंटेन पेन। तो फिर हमें उस केस में हम उसको और फर्दर उसको स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं कि नहीं अब हमें जेल पेन चाहिए है, ठीक है, या बॉल पॉइंट पेन चाहिए है, या फाउंटेन पेन चाहिए, ठीक है। तो पहला पैरामीटर हो गया हमारा इंक कलर, दूसरा हो गया हमारा किस प्रकार का है, वेदर इट इज बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन। और स्पेसिफिक हम जाते हैं तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं आई वांट दिस ब्रांड फोन, क्या हम उसको रेनॉल्ट का चाहते हैं, सेलो का चाहते हैं, पार्कर का चाहते हैं, लाइक दैट। फिर इसके बाद हम कुछ और स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं लाइक कॉस्ट, कि नहीं मैं पेन चाहता हूँ 100 रुपए तक का, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो पैरामीटर्स हम उसको बताते हैं किसी चीज को परचेज करने के लिए, वो सारे के सारे पैरामीटर उस ऑब्जेक्ट को बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई a particular object which we want to describe to somebody else. It is not necessary that it has to be used for purchasing only. हम उसको किसी अलग काम से भी वहाँ पर बता सकते हैं। भाई आपसे किसी ने एक पेन मांगा कि प्लीज गिव मी अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन, तो वो आपको उस पेन का स्पेसिफिकेशन बता रहा है। सिमिलरली if we talk about specifications of a center lathe, then these are the parameters which describes a center lathe in some manner, ठीक है ना। वो उस सेंटर लेथ को किसी प्रकार से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आपको लिख के दिख रहे होंगे लाइक स्विंग डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, हाइट ऑफ सेंटर्स, बेड लेंथ। तो इसके लिए हमें सेंटर लेथ की फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, अपन उसको फिर से देखेंगे। बट मुझे ये बताओ कि ये कैसे हो सकते हैं। एक्चुअली यदि हम सेंटर लेथ की परचेज करने की बात करते हैं या लेथ को बताते हैं तो हमें आना चाहिए कि मोटर, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो क्या ये चीज सही लिखी गई है, नहीं लिखी गई है, कोई बता सकता है आप में से। whatever specifications I have written here, are these correct? और यदि correct हैं तो क्यों हैं? Do you have any idea? किसी को कोई आइडिया है बेटा इसके बारे में? नहीं है, चलो सुनो।
swing diameter is the diameter of the workpiece which can successfully be held and rotated and machined on that center lathe. आया समझ में? Swing diameter is the diameter. ये किसका diameter है? It is the diameter of the workpiece which can be held, rotated and machined on the lathe machine. So consider this figure. ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इस फिगर को देख रहे होगे, we can mount a work holding device here and on that work holding device we can mount the workpiece. तो वर्कपीस की साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए? तो साइज में दो चीजें आएंगी वहां पे, वन विल बी द डायमीटर, अनदर विल बी द लेंथ. ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा. सो वट एवर वर्क होल्डिंग डिवाइस विच वी माउंट हियर, the same work holding device will have center here also. So from this center you can imagine this vertical distance. Why it is important? It is important because we will not be able to mount a workpiece which is having radius more than this. Okay, this vertical distance. We can mount a workpiece having radius less than this distance. यदि हम इस रेडियस का डबल करेंगे तो वो हो जाएगा डायमीटर, और उसी डायमीटर का नाम होता है स्विंग डायमीटर या स्विंग ओनली. समटाइम्स इट इज रिटन है स्विंग ओनली. ओके, तो स्विंग डायमीटर तीन प्रकार के आपको यहाँ पे मैंने लिखे दिखाए थे: स्विंग ओवर कैरेज, स्विंग ओवर बेड एंड स्विंग इन गैप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्विंग, एंड सेकंड व्हाट आर दीज डिफरेंट स्विंग डायमीटर्स: स्विंग ओवर कैरेज, स्विंग ओवर बेड एंड स्विंग इन गैप. ओके, तो स्विंग से आप समझ जाना कि वो वर्कपीस का डायमीटर है, क्योंकि हम जो लेथ लेते हैं उस लेथ में यदि मान लो इसका ये जो रेडियस है, से दिस रेडियस इज 50 mm, ये रेडियस मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस जो कि सेंटर से इस बेड बेस तक है कितनी है, 50 mm है. तो हम 50 mm रेडियस वाले वर्कपीस 50 mm तक, मतलब 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm या 50 mm रेडियस वाले वर्कपीस को हम यहाँ पे माउंट कर सकते हैं और फिर उसकी मशीनिंग करा सकते हैं. तो अब क्या होता है, इफ वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर लेथ, देन ओवर टॉप ऑफ इट you can see carriage, and carriage necessary because tool is mounted on the tool post which is available in the carriage, and this tool is used for machining purpose. ठीक है, मैंने आपको इसके पार्ट्स के नाम बताए थे टॉप के, कि सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस स्लाइड होती है. जो क्रॉस स्लाइड आगे से पीछे तक गई होती है, मतलब यहाँ पे आपको दो स्लाइड बेस दिख रही होंगी. उन स्लाइड बेस के ऊपर ये कैरेज है, एक पार्ट ये दिख रहा है यहाँ पे, और इसके पीछे की तरफ पार्ट ऊपर इसमें क्या है, क्रॉस स्लाइड है. क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट है, उसके ऊपर टूल पोस्ट है. तो हमारा जो टूल लगता है वो यहाँ पे लगता है. अब यदि यहाँ पे हमने वर्कपीस लिया, माउंट किया उस वर्कपीस को, ठीक है ना, तो वर्कपीस माउंट करने के बाद हो सकता है कि वो इस कैरेज से कहीं पर टकराए, ठीक है ना, हो सकता है वो स्लाइड बेस से कहीं पर टकराए. तो हम क्या करते हैं, वर्कपीस की जो रेडियस लेते हैं या जो डायमीटर होता है उन डायमेंशन से कुछ हल्का होना चाहिए, कम होना चाहिए. ओके, तो इसमें जो सबसे पहले लिखा गया है स्विंग ओवर कैरेज, दिस इज द diameter, or this denotes the diameter of the workpiece whose radius is measured from this imaginary center line up to the vertical height from measured from this cross slide. क्रॉस स्लाइड जो अक्रॉस गई होती है उसके ऊपर से ये जो इमेजिनरी सेंटर लाइन है जो कि वर्कपीस का एक्सिस है, उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो रेडियस हो जाती है, और उसका ठीक डबल वो क्या हो जाएगा, स्विंग डायमीटर. तो उसको अपन बोलते हैं स्विंग ओवर कैरेज. समझ में आया कि चूंकि वर्कपीस लंबा भी होगा तो लंबे वर्कपीस को मशीन करने के लिए हमें कैरेज को मूव करना पड़ेगा. तो जब कैरेज को मूव करेंगे तो कैरेज के पार्ट्स भी साथ साथ मूव होंगे. तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कैरेज के पार्ट्स हैं लाइक क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, ये कहीं उस वर्कपीस के साथ टकराए ना और उससे हिंडर, मतलब उसके ऑपरेशन में हिंड्रेंस ना करें, क्रिएट करें. ठीक है ना, तो हमें जरूरी होता है कि वी हैव टू डिस्क्राइब this vertical distance which is measured from top of this cross slide and it is taken up to the imaginary center line. उसका ठीक डबल हो गया स्विंग ओवर कैरेज. ठीक है,
अब मान लो वर्कपीस बहुत लंबा नहीं है, वर्कपीस हमारा छोटा है, कम लेंथ का है, बट इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो डायमीटर कितना हो सकता है? तो यदि हम टूल पोस्ट पे माउंट करके उस वर्कपीस को इजीली मशीन करा सकते हैं और वो वर्कपीस इस कैरेज या क्रॉस स्लाइड से कहीं टकराता नहीं है, ठीक है। तो हमें दूसरी डिस्टेंस लेनी पड़ती है जो कि इमेजिनरी सेंटर लाइन या वर्कपीस के एक्सिस से ली जाएगी, एंड इट विल बी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट सेंटर लाइन अप टू द टॉप ऑफ द स्लाइड वेज। इस स्लाइड वेज के टॉप से और इमेजिनरी सेंटर लाइन की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी दैट इज कंसिडर्ड एज रेडियस, और उसका जो डबल होगा दैट इज कंसिडर्ड एज स्विंग ओवर बेड, ठीक है। सो यू शुड अंडरस्टैंड स्विंग ओवर कैरेज एंड स्विंग ओवर बेड। यदि ये समझ में नहीं आया तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्विंग ओवर कैरेज से पूरा बता दीजिए। देखो, कैरेज का मतलब होता है कि हमारा जो वर्क पीस होगा वो कहीं से भी कैरेज से नहीं टकराएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लंबा वर्क पीस यहाँ पे माउंट करते हैं तो उसकी चांसेस होते हैं कि कहीं पे वो इस क्रॉस स्लाइड से न टकराए, क्योंकि क्रॉस स्लाइड पूरी की तरफ फैली होती है और कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट आगे की तरफ अकेला होता है, पीछे की तरफ नहीं गया होता वहां पे। तो चांसेस होते हैं कि जो क्रॉस स्लाइड है वो इससे टकरा सकती है, हमारा वर्कपीस उससे टच हो सकता है, और जब टच होगा तो हम उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, मशीन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक हाइट लेनी पड़ती है, वर्टिकल डिस्टेंस लेनी पड़ती है, जो कि मेजर की जाती है किससे? टॉप ऑफ द क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड जो कि यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा होगा, हल्की सी छोटी सी चीज दिख रही होगी, इसके टॉप से वर्टिकल डिस्टेंस जो कि वर्कपीस के एक्सिस से ली गई है या इमेजिनरी सेंट्रल लाइन से ली गई है, उसका डबल क्या कहलाएगा? स्विंग ओवर कैरेज। अब चूंकि ये जो कैरेज है दैट हैज बीन माउंटेड ओवर टॉप ऑफ द स्लाइड वेज, तो स्लाइड वेज तक यहाँ पे कुछ स्लाइड वेज कुछ नीचे होता और क्रॉस स्लाइड ऊपर होती है, होती नहीं होती? ये दिख भी रहा है इस फिगर में, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या है, सॉरी स्लाइड वेज के ऊपर क्या है? कैरेज है, कैरेज के ऊपर ये क्रॉस स्लाइड है। तो यहाँ से यदि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये जो डिस्टेंस आएगी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ द स्लाइड वेज अप टू इमेजिनरी सेंटर लाइन, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगी वो इससे ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी? तो यदि हमारा वर्कपीस ज्यादा ही डायमीटर का है लेकिन लेंथ उसकी छोटी है, लेकिन वो उसका जो रेडियस है वो इससे कम है, तो हम यहाँ पर उसको सक्सेसफुली हेल्ड करके रोटेट करके मशीनिंग करा पाएंगे। तो ठीक है, तो इस रेडियस को या इसके जस्ट डबल को जो डायमीटर है, उस डायमीटर को अपन बोलते हैं स्विंग ओवर बेड। तो स्विंग ओवर कैरेज कम होगा, स्विंग ओवर बेड ज्यादा होगा, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? समझ में आ गया? यस सर, हो गया। ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे चीज लिखी है स्विंग एंड गैप। तो होता क्या है, ये फिगर को आप फिर से देखिए। कुछ बड़ी बड़ी लेथ मशीन्स पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कास्टिंग्स फोर्जिंग्स मशीनिंग करने के लिए आती हैं, तो उस केस में जो स्लाइड वेज आपको यहाँ तक दिख रही है अप टू लगभग ये हेड स्टॉक तक की दी गई है, वो कई बार पहले खत्म हो जाती है, लगभग 1 फीट पहले खत्म कर दी क्रॉस स्लाइड को, और यहाँ पे गैप बना रहता है, खाली जगह रहती है, ठीक है ना? ऐसी अभी आप मैं फिगर को आपको दिखाऊंगा, तो आपकी जो क्रॉस स्लाइड रहती है यहाँ कहीं आएगी। अब होगा क्या, इन दैट केस यू विल बी एबल टू मूव दिस कैरेज अप टू दिस मैक्सिमम पॉइंट, इसके पॉइंट नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस स्लाइड रहेगी नहीं, सॉरी स्लाइड बेस रहेगी नहीं, तो स्लाइड बेस के ऊपर फिर ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यदि वर्कपीस की लेंथ काफी कम है तो उस केस में हमें इस गैप के ऊपर हल्की सी और इंक्रीज जगह मिल जाती है जिसको अपन रेडियस मानेंगे। उस केस में स्लाइड वेज यहाँ तक नहीं होगी, ये खाली जगह होगी यहाँ पे, उस लेथ को बोलते हैं गैप बेड लेथ, ठीक है। और वो हल्का सा 6 माने 1 फीट तक का ही मान के चलो, उतना दूरी में ही होता, बाकी जगह तो पूरा ऊपर की तरफ आता है जिसमें कि जो स्लाइड वेज है यहाँ तक रहती है। तो यहाँ से यदि हम वो डिस्टेंस मेजर करें तो कुछ और ज्यादा होगी, उसका डबल क्या हो गया? स्विंग एंड गैप। तो जो स्विंग डायमीटर है, स्विंग डायमीटर आर एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज, स्विंग ओवर कैरेज, स्विंग ओवर बेड एंड स्विंग इन गैप। तीनों में जो सबसे बड़ा है वो स्विंग इन गैप, और जो सबसे छोटा है वो है स्विंग ओवर कैरेज। So in this way, whenever we have to specify a center length, then we have to express the swing diameter, और ये वर्कपीस के डायमीटर हैं जो कि इस लेथ पे लगा के सक्सेसफुली मशीन किए जा सकता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें स्विंग डायमीटर में?
Now second point is distance between centers. There are two important parameters, distance between centers and bed length. Consider this figure. इस फिगर में जो बेड लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की काउंट की जाएगी. इट कुड बी 3 फीट, इट कुड बी 4 फीट, ठीक है ना. 4 फीट भी हो सकता है, 6 फीट भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. तो ये क्या है, बेड लेंथ है. बेड लेंथ का मतलब होता है कि कितनी लंबी स्लाइड बेज है और एक हल्का सा आइडिया देता है कि यू कैन बी एबल टू मशीन अ वर्कपीस हैविंग दिस मच मैक्सिमम लेंथ. ठीक है. लेकिन चूंकि वर्कपीस जब लंबा होता है हम उस वर्कपीस को यहाँ पर माउंट करते हैं और रोटेट कराते हैं. तो ड्यूरिंग रोटेशन देयर आर चांसेस ऑफ क्या बोलते हैं उसको अपन, वाइब्रेशंस ऑफ द वर्कपीस अपीयरिंग एट द अदर एंड, फ्री एंड. ये फ्री एंड हो गया तो इस एंड पर वर्कपीस में वाइब्रेशन आएंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा वहां पे. तो उस वर्कपीस को अपनी जगह फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेलीस्टॉक का इस्तेमाल करते हैं. The longer workpiece is supported from other end by using the tailstock. तो इस टेलीस्टॉक में यहाँ पे हम एक क्विल लगाते हैं और उस क्विल में हम क्या लगा देते हैं, एक डेड सेंटर लगा देते हैं और डेड सेंटर क्या करता है, वर्कपीस को सपोर्ट करता है. अब होता क्या है कि ये टेलीस्टॉक की जो असेंबली है ये कुछ जगह ले लेती है, कुछ लेंथ यहाँ पे ऑक्युपाई कर लेगी. So on a lathe having 6 feet bed length, you cannot be able to machine a workpiece having 6 feet length. शायद समझ में आ गया होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वर्कपीस को दूसरे एंड पर सपोर्ट करना है. दूसरे एंड पर सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जिस टेलीस्टॉक असेंबली है वो भी कुछ लेंथ ऑक्युपाई कर रही है तो वो छोटी रहेगी. अब यदि हम इस टेलीस्टॉक को एकदम राइट मोस्ट पोजीशन में खिसका के ले जाएं, इफ वी स्लाइड दिस टेलीस्टॉक ओवर टॉप ऑफ द स्लाइड पेज एट इट्स राइट मोस्ट पोजीशन, यहाँ तक ले आए, इसके बाद हमने इसको लॉक कर दिया. लॉक करने के बाद यहाँ पर डेड सेंटर लगा दिया. तो ये यहाँ पे एक लाइव सेंटर होता है जो कि स्पंडल पर माउंट होता है. तो इस उस लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच की जो दूरी होगी दैट इज कंसीडर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी लेस देन बेड लेंथ. ओके. तो एक तरीका है, वी कैन स्पेसिफाई और express bed length, we can specify or express distance between centers. Now what about height of centers? तो हाइट ऑफ सेंटर में डिस्टेंस आती है फ्रॉम दिस बेड. इस बेड से या बेड बेस से लेके जो वर्टिकल डिस्टेंस है इमेजिनरी सेंटर लाइन की या वर्कपीस के एक्सेस की, दैट इज कंसीडर्ड एज हाइट ऑफ सेंटर. तो एक तरीका है, either we can use swing diameter, we can use height of center, similarly we can use bed length or we can use distance between centers. So these four are the important parameters. Now if you have any doubt you can unmute yourself and ask. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, आगे चलें. I think no doubt, so we will move forward. अब मैं इसी को एक हल्के से आगे इस फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. यदि आपने इसको समझ लिया है तो आपको बताना है कि व्हाट इज 1, व्हाट इज 2, व्हाट इज 3, व्हाट इज 4, व्हाट इज 5, व्हाट इज 6. ठीक है. अब मैं जिससे पूछूंगा उसको जवाब देना है. रोल नंबर 24 अतुल सो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. हाँ अतुल सा, इसमें आपको जो 1 दिख रहा है, व्हाट इज दिस 1? अपन ने जो पैरामीटर अभी तक पढ़े हैं स्पेसिफिकेशन के, 1 क्या होना चाहिए उसमें? ये स्विंग डायमीटर है, क्या है? 1 ओसामा सर कलाम स्लेज है. क्या है? स्लेज. नहीं बिल्कुल नहीं. ओसामा कलाम रोल नंबर 64. ओसामा क्या चीज होनी चाहिए? रोल नंबर 39 हर्ष यादव. भैया क्लास में अटेंटिव भी रहो. डू नॉट अटेंड क्लास ओनली फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस. रोल नंबर 59 मोहम्मद दानिश. सर डायमीटर है. कौन बोला? फिर से बोलो. सर 56 सर वर्टिमीटर. देखो ये डायमीटर तो नहीं है,
ये जो डिस्टेंस ली गई है फ्रॉम इमेजिनरी सेंटर से लाइन ली गई, तो कौन सी डिस्टेंस है? एनीबडी कैन टेल? कोई भी अनम्यूट करो अपने आप को जिसको आप पता हो। सर डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन, टू सेंटर, मतलब नहीं, सेंटर सर। सेंटर यहाँ आते बेटा, देखो लाइव सेंटर यहाँ पे होता है, डेड सेंटर यहाँ पे होता है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो नहीं है। क्या है ये बताओ? मैं फिर से आपको, अच्छा चलो पैरामीटर ये बताओ। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द पैरामीटर? Height of the center. यस, दिस इज हाइट ऑफ सेंटर, ठीक है ना? सर हाइट ऑफ द सेंटर, यस दिस सर। इज हाइट ऑफ द यस सेंटर। सर, हाइट ऑफ सेंटर। और सर तो डिस्टेंस जो बिटवीन सेंटर, ये है 5 है, यस सर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 5। व्हाट इज 2? व्हाट इज 2 इन दिस केस? टू Sir, swing diameter. कौन सा स्विंग डायमीटर? 3 स्विंग सर डायमीटर क्रॉस थे वहां पे, 3 स्विंग डायमीटर थे वहां पे। स्विंग ओवर कैरेज, स्विंग ओवर बेड, स्विंग इन गैप। स्विंग ओवर कैरेज है। फिर गलत। स्विंग ओवर कैरेज ये है, The swing over bed. यस दिस इज स्विंग ओवर बेड। देखो इस यस फिगर को समझ, स्विंग। Swing over bed. शायद आप लोग इस फिगर को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है? इस फिगर में ये बेड दिखाया गया है, ये हेड स्टॉक है, ठीक है? ये बेड बेज या स्लाइड बेज है, और ये अपना कैरेज है, ये टेल स्टॉक है, और ये हेड स्टॉक है। लाइव सेंटर यहाँ है, डेड सेंटर यहाँ पे, और ये डॉटेड करके इसलिए दिखाया गया है कि कुछ लेथ में ये नहीं भी हो सकता, आपकी स्लाइड बेज यहाँ तक होगी तो ये खाली जगह और मिल जाएगी, ठीक है? अपन फिर से देखते हैं। जो 1 पैरामीटर है दैट इज हाइट ऑफ सेंटर्स, 2 स्विंग ओवर बेड, स्विंग ओवर बेड, जो 3 है स्विंग ओवर कैरेज, 4 क्या है? स्विंग इन गैप, Carriage. स्विंग गैप, नहीं यस स्विंग सर। इन गैप, स्विंग इन गैप, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है? और यहाँ पे जो 6 है दैट इज बेड लेंथ, 6 इज बेड लेंथ, मतलब स्लाइड वेज की इतनी ये लेंथ हो सकती है, ठीक है? अब कई बार क्या होगा कि यदि ये गैप बेड लेंथ है, सॉरी गैप बेड लेंथ है, मतलब उसमें क्या होगा, स्लाइड वेज यहीं तक आएगी, तो आपको जो बेड लेंथ दिखेगी वो इतनी दिखेगी, वो कम होगी। और हाइट ऑफ सेंटर और दोनों फिर बराबर हो सकते हैं वहां पे, क्योंकि हो सकता है जितनी जगह में अपन ने स्लाइड बेज नहीं दी गई वो उतनी जगह पे ये ऑक्युपाई कर रहा हो। तो यदि मान लो 3 फीट है तो ये भी 3 फीट हो सकता है। सो इन अ गैप बेड लेंथ ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हाइट ऑफ सेंटर्स और जो बेड लेंथ हो, स्लाइड वेज लेंथ हो, बराबर हो सकती है वहां पर, ठीक है ना? लेकिन गैप बेड लेंथ में क्या होता है, ये हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिल जाती है जिससे बड़ी डायमीटर के वर्कपीस को और कम लेंथ को हम यहाँ पे मशीन कर सकते हैं, ठीक है बेटे? फ्रॉम दिस फिगर ऑल्सो यू कैन सी, ठीक है? L2 इज बेड लेंथ, L1 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं बचा अपने स्पेसिफिकेशन पैरामीटर में? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना? सर स्विंग इन गैप सर, स्विंग इन गैप ये पैरामीटर है। कुछ लेथ में क्या होता है, जो स्लाइड वेज होती हैं वो पूरे हेड स्टॉक तक नहीं गए होते हैं, वो लगभग 1 फुट 1.5 फुट पहले खत्म हो जाते हैं, यहाँ खाली जगह पड़ी रहती है। ये सिर्फ लेथ इसलिए बनाई जाती है ताकि हम और बड़े डायमीटर के वर्कपीस को जिसकी लेंथ कम हो, उसको जब लेंथ कम होगी तो हमें सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? तो उस केस में हम कम लेंथ के ज़्यादा डायमीटर के वर्कपीस को हम मशीन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस लेती है वर्टिकल यहाँ तक ले जाती है वो रेडियस हो जाती है, और इसका ठीक डबल क्या हो गया, डायमीटर। तो ये हो गया स्विंग एंड गैप, ठीक है? और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस और इसका डबल डायमीटर, तो होगा स्विंग ओवर बेड। ये है स्विंग ओवर कैरेज, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स एंड बेड लेंथ, ठीक है? और कोई डाउट? सो इफ यू एनी डाउट इन दिस स्लाइड, आपको यहाँ पे कहीं कुछ समझ, क्योंकि आप ऑपरेशन तो स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, कुल 1 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम अपने पास बचा हुआ है। यहाँ पे यदि आपको कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो, या फर्स्ट स्लाइड में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन अनम्यूट करके अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द वेरियस ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन लीथ मशीन। उसको अपन को 1 नहीं 2 लेक्चर लगेंगे, इसलिए मैं आपको स्टार्ट नहीं करना चाहता अभी यहाँ पे। इफ यू हैव एनी डाउट, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया किसी को भी, तो आप अनम्यूट करके अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं, और अटेंडेंस मार्क करते रहना अपनी अपनी ओर, ठीक है? नो क्वेश्चन?
ठीक है, तो आज का लेक्चर बंद करते हैं बेटे फिर। ठीक, यस सर, Yes, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक thank you, sir. यू, ओके बेटा।